Pranam everyone. Namaste. You would have started your relaxation process. First few moments, we never rush into it, into Dhyanam. Our minds hold the thoughts of yesterday. Just as a river cannot be turned completely, suddenly, it has to take a gradual bend for the direction to change. In the same way, our minds would have been preoccupied to yesterday's activities and vyavhar. Take a few minutes to relax it. If you suddenly join, it'll be a little unexpected that your mind will be focused. Take a deep breath. Remind your purpose. The identification. The identification with the body, with our thoughts, the world,
and the sense of I. They all come as one unit. That is what we call the experience of waking. Jagrat Avastha. Watch yourself, your day yesterday. Sunrise to sunset. In everything, I was constant, imperceptibly. If we say it casually, taken for granted. It is so ever present that we are acclimatized to its expression, appearance. Throughout the day, I was operative, expressing itself. This I is imposed on the body. Body holds the golakas for the senses. And the senses connect the world. We are deeply embedded with a sense of reality about it. Just observe your day and how you functioned through it. The sense of reality is imposed on it, is felt real, is real. The world is real. I am real. What is happening is real. What I need to do is real. If I don't do, it has consequences.
If I don't want particular set of consequences, I should not do something or I should do something. And all this comes with a sense of time, choice. That I have to make moment to moment, from small to big things. All this is very real to me. What I should say or not say, what I look for, the world is, I am. And this interaction of the world and me is real. Excuse me. Om. 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 Bring back your mind. The interaction looks real, unquestionably. From sunrise till we slept, I was constantly expressing itself. Vyaktai. And I was always doing something, going somewhere, choosing something, and a lot more. Not a moment, millisecond. Was I not in touch with the body? I am moving throughout the day, doing something. Why am I so engaged in it?
Everything looked real yesterday. If I did not do what I was supposed to do, despite me not wanting to do, I chose to do because I thought the outcome of me not doing it would not be pleasant. So I do it. Or the other way around. This is just a pointer to us. Throughout the waking day of ours, me, I, the body, holding the senses, giving expression to I am, connected to the world of objects and people. They're all one unit. And as per each one's own understanding of their own self and the world, which everyone tries to figure out, each one is engaged. Because the sense of real is unquestionable. This is real. What I'm supposed to do and I do not do, it has consequences. They will also be real. I anticipate by past experiences, if I do this, the consequence may not be pleasant, so I should avoid it. If I do that, the consequences can be pleasant, so I do it. Observe if this is so in real life, as we feel it is real. Throughout the day yesterday, what all we did, just observe the mechanism, how it happened. Behind all that, the sense of मैं हूँ. We are becoming a little subtle now in introspection. थोड़ा सूक्ष्म विचार कर रहे हैं. We are taking entry into it. ये मैं हूँ. Is this perception complete to me? I'm repeating. The whole day I have been engaged in things, doing, being, coming, going, etc. ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि the sense of real is real. ये सब real है. Why do I see it as real? Because it is always there. The I that has actually expressed is always here.
ये मुझे जोड़ रही है शरीर से, इंद्रियों से, दुनिया से। ये आई हैज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। The Sukshma Vichar is, Nididhyasana is. This I, मैं हूं, जो कल मैं सब कुछ कर रही थी इसके रहते, क्या ये पूर्ण है मेरी नजर में, मेरी समझ में? जस्ट मैं हूं। अगर ये पूर्ण होता, और लेट मी पुट इट अनदर वे, मेरे हर करने के पीछे क्या था थॉट, क्या था भाव, क्या थी सोच या समझ, क्या था propulsion, the sense of reality of the world। और इसमें मैं खुद इनकम्प्लीट हूं। ये पहचानना है। मैं हूं, मेरी दृष्टि में अगर ये पूर्ण होता, जैसा शास्त्र कहता है, तो कल मैंने कितना कुछ किया। क्या इसमें से कुछ भी होता जरूरी करना, जैसा मुझे लगा कल, जिस भाव से मैंने किया? आई विल रिपीट। We are observing our day yesterday and everything we did in it, and trying to understand and experience that we have lived. कल मैंने जिया था, जिसको मैंने जिया कल, ये सब कुछ जो किया, जो हुआ, जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा, जो करना था नहीं किया, जो नहीं करना था वो किया, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और हो जाते। कॉन्सिक्वेंसेस अनप्लेजेंट हो, मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने जो समझा ठीक, ये करके शायद अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, शायद कल बेहतर होगा, या दर्द नहीं होगा, या हर्ट नहीं होगा, या दुख नहीं होगा, या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, या थोड़ा और सुख होगा। Throughout the day, whatever I did, all of it had me a participant to it. I am the one who initiated it. ये सब मैंने क्यों किया? बिकॉज मुझे एक रियल लगता है यहाँ। ये सब रियल है, ये कंटिन्यूटी रियल है, सच है। आई कांट एस्केप इट, आई कांट अवॉइड इट।
Why? Because I wake up. अपने आप ही जाग जाती हूँ मैं ये जागने का प्रोसेस रोक नहीं पा रही। पॉज भी नहीं लगा पाती। तो ये जो मैं हूं ने सब कुछ कर रहा, ये क्या पूर्ण है? शास्त्र कहता है ब्रह्मन पूर्ण है, और वो ब्रह्मन तत् त्वम असि। और वो पूर्ण बनना नहीं है। हियर एंड नाउ, अभी भी पूर्ण ही है। मगर मैंने कल सब कुछ किया, जिया एक दिन। इसमें मेरे मैं का जो भाव व्यक्त हुआ, मेरे मैं की सोच, मेरे को खुद को, अपने आप को, मेरी मैं की सोच में, ये सब जो मैंने किया, या क्या पूर्णता के भाव से किया, पूर्णता की सोच से किया, पूर्णता की समझ से किया, पूर्णता के आइडेंटिफिकेशन से किया, कि क्योंकि मैं को मुझे मैं अपूर्ण लगा, इसलिए किया। मेरे मैं की अभिव्यक्ति मुझको अपूर्ण दिखती है इस जगत में। जगत बहुत बड़ा दिखता है, बहुत वास्ट लगता है, स्थिर रखता है, आता जाता बदलता रहता है। कुछ मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ मुझे कुछ तो करते रहना पड़ेगा, मुझे कुछ करना है। मैंने नहीं किया तो ये हो जाएगा, मैंने वो किया तो वो हो जाए, हो सकता है, पर मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो कुछ कर सकती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब क्या मेरा पूर्णता का एक्सप्रेशन था? कि ये सारा व्यवहार मेरा अपूर्णता से आया है, व्यक्त हुआ है? बहुत सूक्ष्म है। अगर मन साथ नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, बस सुनिए। क्लास के जैसे ही सुन लीजिए। मगर ध्यान में हम अपनी इंद्रियों को रोक के बैठे हैं, ताकि एक ही इंद्रिय हमारी चलती रहे, श्रवण इंद्रिय। बाकी सब इंद्रियों को हमने विड्रॉ किया है, ताकि ये श्रवण हमारा अंतर ध्यान हो जाए। यही हम जब कक्षा में सुनते हैं तो बुद्धि से सुनते हैं। मगर आज हम इसको अनुभव में देखने की प्रयत्न कर रहे हैं, और सत्य ही है। ये सब कल का मेरा व्यवहार
वेदांत वाक्य से वेरीफाइड था क्या? युगों युगों तक, जब तक ये सृष्टि का काल चलेगा, इस ब्रह्मा जी का काल चलेगा, वेद व्यक्त हो चुके हैं। और वेद व्यक्त हुए हैं तो कर्मकांड भी व्यक्त है और वेदांत भी व्यक्त है। इस अपूर्णता के भाव से जो कुछ भी मैं करूं, इसकी गति मुझे वेदों ने दिखा दी। अपूर्णता के भाव से मेरा पूरा व्यवहारिक जीवन, मेरे सब संबंध, मेरा सब करना, बनना, होना, कल मैंने सब कुछ किया, वो मेरा एक सैंपल डे था। इन सब में मैं का भाव, मुझे लेके, खुद की समझ में, पूर्ण है कि अपूर्ण है? सब व्यवहार में मुझे एक अपूर्णता लग दिख रही है। आज तो हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं जो पूर्ण का भाव होगा वो व्यवहार कैसे करता है। एंड फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस जिन्होंने अध्ययन किया है, हमें पता है कि शास्त्र हमें वो बता चुका है। जो पूर्ण व्यक्ति है, अपने को पूर्ण समझता है, उसके कर्म और व्यवहार कैसे होते हैं। Whatever strikes as a response to this, if you wish, you can send a mail. The purpose of it is only to listen to your own voice. Vedant is an ever growing process. जिस दिन हमारी दृष्टि हमको लेके पूर्ण हो जाएगी, ये थम जाएगी, ये गति थम जाएगी। तब तक हमारी सोच पूर्ण नहीं हुई है, वो अपूर्ण ही है। पिछला मनन हमने एक किया था, मैं सांस ले रही हूँ, तो जो भी आए कुछ लिखा, जवाब नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये हमारी सोच में हमें एवर ग्रोइंग प्रोसेस रखना है। But yes, if it needs verification, इन संबंध का पर्पस ही ये है कि where I need verification, I should be able to verify by the teacher.
तो उस विचार में सही विचार यही था कि ये सब मुझ में हो रहा है, मैं सांस नहीं ले रही, ये सांस मुझ में चल रही है। वो मुझ में का क्या सोच थी, वो उस मनन में ईश्वर थे। ईश्वर संचलित रख रहा है सब। ये सांस में मैं ले रही हूँ, और ये मैं एक इंसान नाम रूप है, वो सांस ले रहा है, ये भी ईश्वर में हो रहा है। वैसा ही आज हमने एक और प्रश्न किया है अपने आप से। मेरे कल का सारा व्यवहार, इसका आधार मेरी खुद की समझ में की, इसमें पूर्णता दिखती है कि अपूर्णता दिखती है? क्योंकि मुझे मैं खुद अपूर्ण लगी तो मैंने ये किया, वो किया, ये नहीं किया, वो करना था, यहाँ जाना था, ये होना था, उनसे मिलना है, उनको नहीं मिलना है, उनके आगे ये कहना है, उनके आगे ये नहीं कहना है। ये सब विचार हम भी करते हैं, शायद ज्यादा ही करते हैं। व्यवहारिक रंग की सोच अलग है। अपूर्णता का भाव वो सब व्यवहारिक कर्म कराता है। मेरे शरीर से जुड़ के मुझे रोज एक ऊर्जा देता है, और उस चेष्टा में रखता है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ सुख है। मगर ये बहुत सूक्ष्म विचार है, एविडेंट है। वेदांत बहुत एविडेंट है। मगर हमारी ना सोच की एक आदत इस एविडेंट पे एज इफ बहुत मोटा मल रख चुकी है, मलिन है। अपूर्ण के भाव में, संबंधों में बहुत राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। हमने किसी संबंध को शुद्ध नहीं रखा। हम शास्त्र विद्या में भी आते हैं तो भी वो संबंध हमारे शुद्ध नहीं रहते, हमारी अपूर्णता उस संबंध को मलिन कर देती है। तो हमने आज ये प्रश्न उठा दिया कि मेरा पूरा व्यवहारिक दिनचर्या, इसमें मैं अपूर्ण तो दिख रहा है। क्योंकि अगर मन में विचार आए कि पूर्ण व्यक्ति फिर व्यवहार कैसे करता है, तो अभी तक जितना भी हमने अध्ययन किया है, मैं बस अपनी कक्षा की बात कर सकती हूँ। बहुत गहराई से मैंने तो कराया है, किया है। वो विचार अब स्फुरित होने चाहिए। अरे, यही तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ने पूछा, दैट पोर्शन
If it do, if it comes to your mind and you want to send a mail, you can for verifying. Generally, it gets verified in time if we are consistent. इसी से हमारी ग्रोथ होती. Remember your own Ishta Devata. Invoke it. Him, her. इनकी कृपा से आज एक और दिनचर्या आएगा. कुछ बदलना नहीं, बस जीना है. जो कर रहे हैं वही करना है, जैसे करते हैं वैसे ही करना है. बस अगले दिन फिर से विचार करेंगे कि आज जो हम कर रहे हैं कुछ बदलेंगे नहीं. जो करना है जैसे कर रहे हैं वही सब करेंगे. बस कल मनन करेंगे. ये पूर्णता का भाव है कि अपूर्णता का भाव है. पूरा जीवन शास्त्र हमें कहता है सब प्राणियों का इस अपूर्णता के भाव से किया हुआ लिमिटेड गेन्स लाता है, और वही लिमिटेशन को जन्म कहते हैं. और वही संसार चक्र कंटिन्यूअस रहता है. बस जिसने अपने आप को पूर्ण जान लिया उसी ज्ञानी की मुक्ति होती है इस चक्र से. जीवित वो फिर भी हो सकता है, जीवन मुक्त हो जाता है, कर्म वो फिर भी करेगा, व्यवहार वो फिर भी रखता है, बस दृष्टि बदल गई, क्योंकि समझ बदल गई, क्योंकि विचार किया तो सत्य दिख गया. It is the same principle that we see in the world. जब सेब गिरा तो एक व्यक्ति ने पूछा, विचार किया कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. And a whole science evolved after it. Mankind's direction of experience is changed because of one man's revelation. हमारे ऋषियों ने यही विचार किए अपने अस्तित्व को लेके. And it changed the inquiry. It changed the way human beings can live on this planet as long as life is there. तो हमारी चेष्टा है throughout in my Vedanta classes, ever since we were toddlers, knowing nothing, the focus has only been one. कि वेदांत का जो वाक्य है इसको हम कैसे अंतर्भूत कर लें.
इसी चेष्टा में हम फल नहीं देख रहे, सिर्फ चेष्टा में हम खुद को रख रहे हैं। ये तो इस ईश्वर की कृपा है। ये हम चेष्टा के लिए प्रेरित हैं। To conclude, I will chant Om once. Om. Ram everyone. शुभ दिनम।